Good morning class. In this video we are going to start the new chapter, that is chapter number 4, which is heat. Okay. So in chapter 3 you learned that woolen cloths are made from animal fibers. You also know that cotton cloths are made from plant fibers. We wear woolen cloths during winters when it cold outside. Woolen cloths keep us warm. We prefer to wear light colored cotton cloths when it is hot. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular type of clothes are suitable for particular season. In winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun you will feel warm. In summer you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is cold or hot? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter, we shall try to seek answers to some of these questions. तो बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट सीजन्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स वियर करते हैं, ठीक है। जैसे कि जब सर्दियां आती हैं तो हम लोग मोस्टली वो क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं जो एनिमल फाइबर से बने हुए हैं। और एनिमल फाइबर्स से कौन से क्लॉथ्स बनते हैं ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। एनिमल फाइबर से बनते हैं वुलन क्लॉथ्स विच कीप्स आवर सेल्फ वार्म, ठीक है। जो वुलन फाइबर होते हैं, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर्स से बने होते हैं, इसकी वजह से वो हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें जो दूसरे कॉटन क्लॉथ्स हैं जो प्लांट फाइबर से बने होते हैं, वो हमें जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखते हैं इन समर्स, ठीक है। तो डिफरेंट सीजन्स के लिए डिफरेंट क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कई बार ऑब्ज़र्व भी किया है, जैसे हम लोग जब गर्मियाँ होती हैं तो हम लोगों को घर के अंदर भी गर्मी लगती है, बाहर भी गर्मी लगती है ना। तो उसकी वजह से ये जो क्लॉथ्स हैं हमारे, ये प्लांट फाइबर से बने होते हैं जो हमारी बॉडी को थोड़ा सा ठंडक पहुंचाते हैं, जो हीट ट्रैप नहीं करते हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरी जगह अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में घरों में हमें बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है, लेकिन अगर हम बाहर सन में चले जाएं तो हमको उतनी सर्दी नहीं लगती है, ठीक है। और हम लोग उस टाइम पे वुलन क्लॉथ इसलिए पहनते हैं क्योंकि वुलन क्लॉथ हीट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हर चीज़ का अपना अपना टेम्परेचर होता है, ठीक है। कौन सी चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, वो हम आगे अभी पता लगाएंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक 4.1, दैट इज़ हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. Some of them are hot and some of them are cool. You can see the table 4.1, that is hot and cold objects. Here the three columns are given for you, that is object, cold, cool, warm or hot. Okay, so here are the name of different things given, okay, and you have to mention whether it is cold or it is hot. If it is cold you will tick here, and if it is hot then you will tick here, okay. Tea is hot and ice is cold. List some objects you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot or cold, okay. Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove, okay. We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide whether which object is hotter than other? We often do it by touching the objects, but is our sense of touch reliable? Activity 4.1. Take 3 small tubs container. Label them A, B and C. Put cold water in container and cold water in container A and hot water
in container B. Mix some cold and hot water in container C. Now dip your left hand in container A and right hand in container B. After keeping the hands in the two container for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in container C. Do both the hands get the same feeling? Bujo says, my left hand tells me that the water in the mug C is hot and the right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? So Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. Okay? तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग उसको किसी भी चीज़ को किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग छू के पता लगा सकते हैं कि क्या वो गर्म है या वो ठंडी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने एक्टिविटी 4.1 परफॉर्म किया, ठीक है, जिसको पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका क्या कंक्लूजन निकलता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी 1 में हमें करना क्या है, हमें 3 टब लेने हैं। दैट विल बी टब A, टब B, टब C, as you can see in the figure 4.1. okay, here we can see the 3 tubs. This is A, this is B and this is C. okay, and हम लोगों को क्या करना है, टब A में हम लोगों को कोल्ड वाटर रखना है, टब B में हॉट वाटर रखना है और टब C में दोनों का जो A और B का जो वाटर है उसको मिक्स करके हम लोगों को टब C में डालना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को टब A में अपना राइट हैंड डालना है, टब B में अपना लेफ़्ट हैंड डालना है, ठीक है। उसको 2 से 3 मिनट के लिए वहाँ पे स्टे करना है, ठीक है। जब थोड़ी देर के लिए हम दोनों हाथ अलग अलग टब में, एक हॉट टब में एक कोल्ड टब में डाल के रखेंगे। उसके बाद जब 2 से 3 मिनट हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को दोनों हाथ एक साथ निकालने हैं और दोनों हाथ एक साथ टब C में डालने हैं, ठीक है। ये है टब C जिसमें हमें दोनों हाथ एक साथ डालने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो हाथ हमारा वार्म टब में था जिसमें हॉट वाटर था, ठीक है, जो था हमारा लेफ़्ट हैंड, ठीक है, और राइट हैंड था हमारा कोल्ड टब में। तो जो थंब जिस टब में था पहले, हम लोगों को वही टेम्परेचर टब C में लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा लेफ़्ट हैंड गर्म पानी वाले टब में था, तो हम लोगों को टब C का जो पानी है वो लेफ़्ट हैंड में गर्म महसूस होगा, और राइट हैंड वाला जो हमारा हाथ था वो टब A में था जिसमें ठंडा पानी था, तो राइट हैंड वाले हमारे हाथ को टब C में ठंडा पानी लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कभी कभी जो हमारा टच है वो हमें धोखा दे जाता है। तो वी कैन नॉट रिलाई फॉर द temperature of any object on our touches. Okay, so what we should do about it? Okay, then we can find out how an object is hot or an object is really cold. It is a reliable measure of hotness of an object is given by temperature. Okay, and how we can measure temperature? Temperature is measured by a device called thermometer. Okay. So students, this is all for the today's session. Okay, if you have any doubt regarding this video, you can clear your queries in Google Meet session. Thank you.